दिस इज़ नॉट इट। मुझे लगा था मेरा जेआरएफ हो गया है, लाइफ सेट है, आराम से पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, डीयू में प्रोफेसर लग जाएंगे, अब तो जेआरएफ इज़ लाइक कर लिया है, कुछ कर लिया लाइफ में। बट दैट्स नॉट द केस। इट इज़ जस्ट the beginning of a really long, grueling, brutal process, I'll say. Hello, everybody. My name is Muskan Khanna, and this is my very first YouTube video. So, welcome to my YouTube channel. I am Muskan Khanna. I have been born and brought up in Delhi. I completed my bachelor's in political science from Lady Shriram College for Women, University of Delhi in 2021. And thereafter, I completed my master's in political science from Hindu College, University of Delhi in 2023. Currently, I'm a PhD research scholar at University of Delhi, and I cleared UGC NET GRF examination in my very first attempt during the third semester of my master's. So this video is to help everybody out who has appeared in the latest UGC NET exam and are clueless about what should be our next step. It will be divided into three categories to cater three kinds of people. First will be those who are not able to clear NET exam. Second will be those who are clearing NET or have already cleared NET but are unable to get through JRF. And third, and towards the end, I will talk about those who are expecting to clear JRF in this particular cycle. So, without further ado, let's delve into this video straight away. So, for those people who are not sure of clearing NET in this particular cycle and are very heartbroken, all I can say is that you should not be heartbroken at all, because the very next cycle is coming in less than 3 months. And आप अभी currently पढ़ने की साइकिल में है, यू आर नॉट आउट ऑफ टच ऑफ स्टडीज, आपने पेपर 1 भी पढ़ा है, आपने पेपर 2 भी पढ़ा है, एंड यू नो आपने कहाँ फॉल्टर किया है. So my only advice to all of you will be to just analyze, take a 3-4 day gap, take a week gap if you want to, but go back to the paper. You have the answer key now, and you have your responses as well. So one thing that you must do is to just probably make a table. It might seem tedious, but एक दिन लगेगा, and I think ये worth होगा आपके next attempt के लिए. So just jot down आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही किया है, सही किया है, लेट इट बी. जहाँ जहाँ आपने गलती करी है उसमें गलती क्यों हुई है. वॉज इट अ सिली मिस्टेक? डिड यू रीड करेक्ट को इनकरेक्ट? बिकॉज इस बारी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बोल्ड करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं मेंशन था. सो वॉज इट अ सिली मिस्टेक या वो एक नॉलेज गैप था? जस्ट मेंशन दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ योर सिलेबस. एंड आई थिंक ये एक्सरसाइज टीडियस लगेगी, थोड़ा लगेगा कि यार क्यों करना है, बट इफ यू डू इट, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट अलॉट, बिकॉज आपको पता होगा कि मेरी क्या वीकनेस है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई थिंक यू शुड डू. नाउ फॉर दोज पीपल हु आर न्यू, हु हैव नॉट अपीयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर cycle and want to start, all I can say is I'll make a completely different video for that to tell you about the strategy and how you can do it, because मैंने बहुत लंबा टाइम नहीं लिया था. I also prepared for like 2-3 months, in fact less than that, and I ended up getting JRF. So it is very much possible, but the first step that you should do is last 3 cycle के papers उठाइए, go through every question and just make yourself acquainted with what kind of questions they are asking. So ये first step होना चाहिए आप सभी का. Now let's straight away jump onto the second category of people जो इस बार नेट क्लियर कर रहे हैं या जिनका पहले से ही नेट क्लियर है बट दे आर मिसिंग आउट ऑन JRF कुछ छोटे से मार्जिन से. सो ऑल आई कैन टेल यू इज दैट आई नो सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने थर्ड टाइम दिया है, फोर्थ टाइम दिया है, एंड अगेन दे आर मिसिंग आउट सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन से. एंड ये बहुत ज़्यादा नॉलेज गैप की वजह से नहीं होता. इट इज़ मोर अबाउट लक, हाउ यू परफॉर्म इन दैट वेरी डे. सो खुद को डाउट करना छोड़ दो. जो बैगेज ले रहे हो दैट यार शिट 3 बारी से नेट हो रहा है, JRF नहीं हो रहा, आई थिंक इट्स टाइम कि उसे आप लेट गो करो, बिकॉज जब तक वो लेट गो नहीं करोगे तब तक हम सिली मिस्टेक्स पेपर में करेंगे. एंड इतने लोगों ने लास्ट मोमेंट में सही क्वेश्चन को वापस जाकर इनकरेक्ट कर दिया है, इतनों ने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ा है, इतनों ने टाइम मैनेज नहीं किया है. सो अगर ये इश्यूज रहे हैं तो ये वर्केबल इश्यूज हैं, आप इन पर काम कर सकते हो और नेक्स्ट में डेफिनेटली JRF क्लियर कर सकते हो. सो व्हाट यू नीड टू नो इज नॉट बिल्ड अप अलॉट ऑन योर नॉलेज, अपने सोर्सेज सेम रखो. ऑल आई कैन से इज अगर अभी आप थोड़ा फैक्ट बेस्ड पढ़ाई करके जा रहे हो, उसे थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड कर लो, थोड़ा सा डिटेल में चले जाओ थियोरीज के, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स विल ऑलवेज होल्ड ऑन टू यू, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे.
सो अगर आपको लग रहा है नॉलेज गैप की वजह से हुआ है, यू कैन ऑल्सो डू द एक्सरसाइज जो मैंने नेट वाले लोगों के लिए बोला है, टू नो किस यूनिट में आप ऑल्टर कर रहे हो, किस में आपके हमेशा कम आ रहे हैं मार्क्स। बट अगर आपको लग रहा है आपने सारी पढ़ाई कर ली है फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, देन आई थिंक ये उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये उस पर बेस्ड है। एंड आप जो गलतियाँ करते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सामने लिख कर लगा लीजिए। मैंने भी यही किया था, 10 पॉइंट्स लिखे थे, मुस्कान तुम करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ रहे हो, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ रहे हो, आप एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज़ कर रहे हो। मैंने ऐसे 10 पॉइंटर्स अपने सामने लगा लिए थे। सो व्हेनेवर आई वाज प्रैक्टिसिंग अ पेपर, आई यूज्ड टू सी अच्छा इस क्वेश्चन में ये मैं मिस तो नहीं कर रही। एंड बाय द टाइम यू सिट फॉर योर रियल पेपर, आपको ये याद हो जाएगा, इट विल गेट एम्बेडेड इन योर हेड कि अच्छा मुझे ये 10 पॉइंट्स याद रखने हैं। सो डोंट बी हार्ट ब्रोकन, दिसंबर साइकिल यहाँ ही है एंड आपका बहुत बड़ा अपर हैंड है उन लोगों से जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्रो एट इट। सो ऑल द बेस्ट एंड डोंट वरी अबाउट इट, हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा सा लक बेस्ड हो जाता है, बट जो चीज़ें कंट्रोलेबल हैं उस पर ज़रूर काम कीजिए। एंड फाइनली थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर क्लियरिंग JRF दिस टाइम, ऑल आई कैन से इज दैट दिस इज नॉट इट। मुझे लगा था मेरा JRF हो गया है, लाइफ सेट है, आराम से PhD में एडमिशन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, DU में प्रोफेसर लग जाएंगे, अब तो JRF इज लाइक कर लिया है, कुछ कर लिया लाइफ में। बट दैट्स नॉट द केस, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ रियली लॉन्ग ग्रूअलिंग ब्रूटल प्रोसेस आई विल से। बिकॉज असली रेस JRF क्लियर करना नहीं है, असली रेस PhD में वो सीट लेना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। स्पेशली इस साइकिल से ये सिर्फ JRF या नेट का एग्जाम नहीं था, इट इज़ एन एंट्रेंस क्वालिफाइंग एग्जाम एज वेल। दिस विल बी योर एंट्रेंस स्कोर एज वेल फॉर central state universities at least. In fact, many private universities will use it. So all I can say is take a week gap, enjoy करो, पार्टी कर लो, बट मुझे नहीं लगता आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बिकॉज कमिंग 6-7 months बहुत ब्रूटल, बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। आई हैव बिन थ्रू इट। आपके प्रपोजल रिजेक्शन होंगे, इंटरव्यू में आपको डाउट किया जाएगा दैट यू डोंट इवन हैव एनी नॉलेज बेस, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा टू नो एवरीथिंग अबाउट रिसर्च, एंड even after doing everything you might still not get into it, because so many of my friends who were so good at it still could not get into it. So हमारी जो प्रेपरेशन है, स्ट्रैटेजी है, वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। अगर हमें विदाउट एनी गैप स्ट्रेट अवे एडमिशन चाहिए अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी में, दैट कुड बी JNU, दैट कुड बी DU, दैट कुड बी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज, फॉर दैट मैटर एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो वो प्रोसेस बहुत लंबा होगा, ग्रूलिंग होगा, and I don't think so you should wait for a long time to get into that mode. But that entire process demands a separate video जिसमें मैं अपना पूरा experience share करूँगी, because not just DU, JNU, private university, state university, I have the experience of it all, and एक ही cycle में I got selected. So and many of my friends got into JNU also, many of my friends got into state universities also, and private as well. So I will help you out in whatever manner I can. All I can say is just don't feel that it is over and it's done, because it's not. It is just the beginning. So for all the category of people, all I want to say is this cycle is now over. Don't constantly engross yourself. Keys में हो गया challenge, analysis video मैं नहीं डाल रही हूँ, because it does not matter जब तक result ना आ जाए, final key ना आ जाए, because कुछ क्वेश्चंस हमेशा NTA के डिस्क्रिपेंसी की वजह से ऊपर नीचे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारी खुद की गलती से ऊपर नीचे होते हैं। सो हमें वो बफर बना के चलना पड़ता है उन 7-8-10 क्वेश्चंस का। सो जिस दिन वो बफर बन गया, JRF हो जाएगा। एंड yeah, so this was like a quick starter video for you all, that this is how you should be spending your next week, relaxing but then contemplating also what next. So I hope this was helpful, and comment down below what you want to see next, and if you have any doubts regarding this entire process, and anything that you'd like me to help you with. So see you in my next video. Hope this is helpful. Like, comment, share, and subscribe, and just spread this video out to whoever has appeared and is planning to appear in this paper. See you. Bye. Take care.